बड़ी पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। फिल्मों में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। याद होगा आपको, शोले में ठाकुर कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उनके कोच बैज मक्कलम, जिनके नाम पे बैज बॉल बन गया है, एक बहुत जबरदस्त थ्योरी, प्रैक्टिस जो भी कह लीजिए, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में इंग्लैंड जो है वो 3 स्पिनर्स खिलाएगा और केवल 1 पेसर। हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त सीएस साहब मौजूद हैं। सीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस Thank कोल्ड। you. Second is, do you actually think that such a game plan is required? 3 spinners and a single pacer in India, although Well, Australia has done it. Yes. I mean, obviously, you have to look at the wickets. First test will actually, tell is going to reveal what kind of wickets India is providing. If they provide the complete spinning track, which we did in 2012, 13, if you remember, when we last lost a series to, England. And after that, 11 years, we haven't lost a single series. Australia have lost, everybody has lost at their home, but not in India. So, so if we provide that kind of wicket, then Monty Panesar was more deadlier than all of our spinners. If they could do that, but right now there is no Monty. There is just one Leach. He is a good spinner. He's the man to always their captain. Will be looking for. But again, the rest two of the spinners, Ahmed and one more spinner, they are not that experienced. Whether they could actually combine well with Leach to attack Indian batting, to go after the Indian batters, that would be something that their team management will have to see. And but again, right now, I think playing with just one pacer and then hoping that their captain Ben Stokes is going to bowl little bit. I think that could be again be a that could backfire. That could backfire completely because the Indian batters, especially, we have seen in last so many series, whether it was Australia or any other team visiting India, lot of wickets were taken by pace bowlers. Despite the fact that there were a couple of good spinning tracks, but despite that, Pat Cummins, all these bowlers, they dominated, lot of sessions. CS, if for the benefit of our viewers, let's jog our memories a bit and tell them that inform them rather that when Australia were here, they picked a trio. They more or less experimented with the same pattern of having 3 spinners: the highly experienced Nathan Lyon, Matthew Kuhneman, about whom nothing much was known, and Nothing an much. absolutely rank young kid called Todd Murphy, who made a name for himself. Pat Cummins, their skipper, was the only fast bowler. So that was okay. Now, here, where England is concerned, like you're saying, Jack Leach, who has played an important hand for England at different points in time, has played 34 tests so far, 124 wickets, and that is where the comparison ends. फिर हमारे सामने रेहान अहमद हैं, जिन्होंने केवल 1 मैच खेला है, और उसके बाद टॉम हार्टली हैं, जिन्होंने तो अब कोई मैच भी नहीं खेला इस लेवल पे। और ये एक दिक्कत की बात शायद हो इंग्लैंड के सामने। और प्रॉब्लम क्या है, इंडियन स्पिनिंग ट्रैक पे है। ये इतना आसान नहीं होता कि कोई भी स्पिनर आएगा और वो विकेट्स लेना शुरू कर देगा। जब बॉल रैंक टर्नर होती है, जब 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 पिचेस अच्छी हम बनाते हैं, जो खासकर मोहाली का, अगर मुझे साउथ अफ्रीका का याद है, पहली बॉल पहले दिन नई बॉल स्पिन करनी शुरू कर दी थी अश्विन की। दैट वाज द वर्स्ट विकेट आई हैव सीन इन सो मेनी इयर्स, इन लास्ट आई वुड से 1 डिकेड और सो। बट पॉइंट इज, वैसी विकेट नहीं मिलती यहाँ पर। जो विकेट जो बनती है वो पहले दिन थोड़ा बहुत, और खासकर इस मौसम में, चाहे वो हैदराबाद में पहला मैच हो या उसके बाद ये कहीं भी खेलेंगे, थोड़ा सा सुबह जो मॉइस्चर है, जो सुबह जो कंडीशंस है हमारी, थोड़ी सर्दी वाली कंडीशंस, इसमें फायदा होता है थोड़ा पेस बॉलर्स को। एंड देन स्पिनर कम्स इनटू प्ले। यू कैन प्ले विथ 3 spinners, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। पॉइंट इज, डू यू हैव पेसर्स टू बैक देम? डू यू हैव पेसर्स टू मेक दैट बॉल ready for the spinners? इंडियंस हैव बीन डूइंग दैट। अगर आप देखें लास्ट 11 साल से अगर इंडिया अनडिफीटेड है, दैट इज बिकॉज वी हैव सम टू वेरी गुड क्वालिटी बॉलर्स, अश्विन एंड जडेजा, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद एटलीस्ट 2 ऑफ द पेसर्स। शमी है, बुमराह है, या जब भी चेंज भी होते हैं हमारे पास बॉलर्स, हमें ईशांत उससे पहले रहे हैं, ये सब बॉलर्स कंट्रीब्यूट करते रहे हैं।
तो इन बॉलर्स के होते हुए उसके बाद स्पिनर्स आकर के अटैक करते थे। बहुत कम आपको विकेट, वो जो मैं मोहाली की बात कर रहा हूँ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वैसी विकेट बहुत रेयर आपको मिलती है। सो अगेन आई थिंक पहला दिन पहले मैच का हैदराबाद में, कल आपको देखना होगा कैसी विकेट देंगे। अगर रैंक टर्नर देंगे, आई वुड अगेन से रैंक टर्नर नहीं देने वाले, क्योंकि अब हमारे पेसर्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए बास्बॉल हो या कोई भी क्रिकेट आप खेलना चाहे हो, आपको पेस बॉलर्स लेकर के चलना चाहिए। बिल्कुल। जहां तक इंडियन स्पिनर्स की बात है तो एक रिकैप हो जाना जरूरी है, क्योंकि जब क्वालिटी की बात आती है, जैसे सीएस आप कह रहे हैं कि इफ यू कंपेयर द इंग्लिश बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स टू द इंडियंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. You begin with Ravi Ashwin, who has played 95 test matches, 490 wickets. You have a Jadeja, who has 68 matches, 275 wickets, plus an excellent bat. Kuldeep Yadav, well, only 8 matches, 33 wickets. That is also quite important. Then Akshar Patel, 12 matches, 92 wickets, and again a very, very handy batter. So this handy batter business sort of balances out quite a bit in India's favor, doesn't it, CS? Well, Arup, I think you have to look at our batting also. In last 11 years, even if we keep ourselves to last 11 years when we were undefeated at home soil, I think you have to also understand that during this period, Virat Kohli, Rohit Sharma, everybody has scored so heavily. Later on, all this, whether it's Rahul, whenever they have got chances, any batsman, I think they have batted so well. एंड इस होम सॉइल का जो हमें हमें जो परफेक्शन जो हमने पाई है, जो 11 साल में हम नहीं हारे हैं, उसका रीजन एक ऑल आउट टीम एफर्ट है। उसमें किसी एक का कंट्रीब्यूशन आप नहीं कह सकते कि रविचंद्रन अश्विन ने आपको मैचेस जिताया। उसमें सभी पेसर्स का इक्वल हुआ है। हो सकता है 40 हो, 60% आपके स्पिनर्स हो, लेकिन बैटर्स ने उतना ही कमाल किया। बैटर्स ने लंबे स्कोर लगाए, बैटर्स ने चेज किया, बैटर्स ने फोर्थ इनिंग्स में भी हमें जिताया। विराट कोहली की अगर आप बात करें, तो उस तरह से मैंने कहा ना कि आपको इट हैज टू बी ए कंबाइंड एफर्ट। अगर थोड़ी सी भी गलत फहमी में कोई भी रहेगी, कोई भी टीम विजिटिंग टीम रहेगी कि हम किसी एक डिपार्टमेंट से हरा सकते हैं, हम 3 स्पिनर्स खिला करके या एक बैट्समैन में कॉम्प्रोमाइज करके, वो नहीं होगा। आपको 2 पेसर चाहिए, 2 से 3 स्पिनर्स चाहिए, एंड देन एटलीस्ट 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन। अगर वो सब कुछ रहेगा, देन अक्षर पटेल काइंड ऑफ पीपल, whether he plays or not, that is a different issue, but all rounders will come into the game. All rounders, चाहे वो लेटर ऑन के जो जो रन्स है जो क्रूशल, कभी बुमराह करते हैं, कभी शमी करते हैं, अक्षर को तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस नहीं मिले। इन सब रनों का तब इम्पैक्ट होगा जब आपके शुरू के सॉलिड रन्स होंगे, और उसमें इंडियन डिपार्टमेंट ने कभी भी इंडिया में निराश नहीं किया। Right. Let's look at the possible England 11, and I'm using the word possible because the team is yet Yes. to be announced. So Zach Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope at number 3, Joe Root, who's a phenomenal Test player. Then Johnny Bairstow at number 5, Ben Stokes at number 6. But then let's be very clear about Ben Stokes. He's not going to bowl. Ben Foakes will be the wicket keeper, and he's been praised a lot by Ben Stokes repeatedly. Then come the spinners, Rehan Ahmed, Tom Hartley, and Jack Leach. And the only genuine pacer is Mark Wood. And they have emphasized a lot on his importance because of the fact that he played during the World Cup. He knows the Indian conditions very well. Of course, Mark Wood does have a point where he says that he wasn't as successful then, but this is Test cricket and it'll be a different ball game altogether. So when we are talking about the batting, CS, how does it look to you with Crawley and Duckett opening, then Ollie Pope coming in? And yes, also let's not forget that a very interesting point has been made by Ben Stokes when he said that if Jaiswal opens, then we might have Joe Root opening the bowling to move the ball away. So you see all of that happening. But Joe Root has proved in the last Yes. couple of Yes. years that he's bowling very well. I mean, he's actually been a good part-time off spinner. But again, coming back to their batting side, I think Ollie Pope, their captain, and Joe Root, apart from these three, I don't think they have much of experience in playing on Indian tracks. Most of these batsmen, whether it's Crawley or anybody else, they have not even been playing the IPLs. So, the problem with this batting side or any batting side which tours India is that
by negotiating with these wickets, by trying to keep that balance, और जो कहते हैं ना कि आपको स्टांस कहाँ लेना है, आपको कितना बाहर खड़ा होना है, या पैर को कितना अंदर करना है, बॉल की लेंथ को पढ़ना, उस लाइन को पढ़ना, उसी में एक दो टेस्ट निकल जाते हैं. Good thing is that you have more than 2 test here to play. But overall the problem is, एक या दो टेस्ट अगर आप हारने लगो, अगर आप शुरू में आपकी विकेटें गिरने लगे, तो आपको एडजस्ट करने में लग जाता है. So important thing is, if their captain is, it's a clever thinking also, whether or not India, opens with Jaiswal or not. But I think it would be very, very wise to open with, somebody, of level of Joe Root. He's a very, very formidable, batsman. उनको आइडिया है इन विकेट्स पे कैसे खेलना, उनको आइडिया आईपीएल में उन्होंने तेज रन भी बनाए, उन्होंने कप्तानी भी की है, उनको हर एक चीज का आइडिया. आई थिंक बाय प्लेइंग हिम, even if not as the opener number 3, rather than Ollie Pope, अगर लास्ट सीरीज देखें, Ollie Pope की अच्छी नहीं गई थी. Ollie Pope को आप थोड़ा पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो रूट को ऊपर खिलाना will be a very, very wise decision. और दूसरा ये मत भूलिए कि ये जो बैसबॉल के जो क्रिएटर है, जो उनके कोच है, मैकुलम, ही इज ए वेरी स्मार्ट प्लेयर. अगर आपको फर्स्ट आईपीएल ध्यान हो, शुरू में कैसी सेंचुरीज 150 कर दिया था उन्होंने, और कितना कमाल का खेल रहे थे, और कप्तान भी एक अच्छे रहे. ही इज ए गुड थिंकर. बैसबॉल को छोड़िए, वो खेल पाएंगे नहीं, वो एक चीज मैटर नहीं, बट ही इज ए गुड थिंकर ऑफ द गेम. तो उनको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना होगा, आई थिंक ही नोज दिस विकेट्स. वो इसको रीड अच्छे से कर पाते हैं. एज ए कप्तान भी जब वो खेलते थे केकेआर के साथ, तो वो रीड कर सकते हैं हमारी विकेट्स को. तो आई थिंक दैट विल बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंग्लिश टीम. सीएस, हम लोग पहले भी इस शो पे काफी बातचीत कर चुके हैं कि क्या टेक्निक इख्तियार करनी चाहिए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में स्पिन के खिलाफ, और कितने कम बैट्समैन हैं जिनका अभी भी बूता है कि वो 2 कदम आगे आके बॉल को मीट करते हैं. अभी भी सब पीछे बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि वो टेक्निक ही नहीं है. पर जहां तक इस इंग्लैंड टीम की बात है, तो आपने जो रूट का नाम लिया, जॉनी बेस्टो अटैकिंग है, बेन स्टोक्स खेल सकते हैं, बेन फोक्स भी खेल सकते हैं, तो ये 4 तो हैं. ओपनर्स विल बी ऑन टेस्ट. और एक चीज अगर एक जल्दी से कंपैरिजन किया जाए, जो ऑस्ट्रेलियन साइड था जो यहाँ आ चुका था, तो स्मिथ के इर्द गिर्द उनकी मिडिल ऑर्डर की टेक्निक जो थी अगेंस्ट स्पिन वाज, आई वुड से, क्वाइट सुपीरियर, फार सुपीरियर देन द इंग्लिश. देखिए जितना क्रिकेट मुझे समझ आया, या जितना मैंने पढ़ा और लिखा है और खेला है, स्पिन को खेलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जो आपने बात की थी, कि आपको बॉल पर निकलना पड़ेगा. अगर आप उसको स्पिन होने देंगे, तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप बैकफुट पे, खासकर इंग्लिश प्लेयर्स जिनकी बैकफुट पे जाकर के थोड़ा सा बॉल घूमने लगती है और चकरा जाते हैं. हमारे बैकफुट के प्लेयर विश्वनाथ थे या गावस्कर थे या जितने भी थे, वो लोगों का एक अलग अंदाज था. वो लास्ट मोमेंट तक खेलकर भी कट कर सकते थे उस बॉल को. लेकिन ये टेक्निक कभी भी अंग्रेज लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगी. तो उसको नेगोशिएट करने का एक ही तरीका है, आप जाइए, जितना स्टेप आउट कर सकते हैं, बॉल को स्पिन होने से पहले रोकिए. और दूसरा उसका क्या फायदा होता है, आप उसकी लाइन को खराब कीजिए. क्योंकि जो टप्पा है ना, अगर आपने उसका टप्पा जमने दिया, खासकर कुलदीप यादव अगर खेल रहा है या अश्विन है, अगर उसका टप्पा जमने दिया, तो फिर आप टप्पे के बाद खेल नहीं पाओगे आप उसको. क्योंकि ये बहुत तेज निकालते हैं. रविंद्र जडेजा, अश्विन की कैरम बॉल भी बीच में चलती है. आपको उसको नेगोशिएट करने के लिए उनके टप्पे को खराब करना पड़ेगा. 1-2 बार बाहर निकलेंगे, वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखेंगे, और शॉर्ट ऑफ लेंथ जैसे रखी, आप बैक फुट पर जाकर के फिर जो स्मिथ करते थे, अगर आप देखें, वो इतना ज्यादा शफल करते हैं कि वो आपको परेशान करते हैं. लारा ये करते थे जब उन्होंने मुरलीधरन के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो, बैक टू बैक डबल सेंचुरीज की थी, उस वक्त पे उनका तरीका यही था, मुरलीधरन को भी अनसेटल करने का. वो बहुत ज्यादा शफल करते थे, वो उनका अंदाज था. यही स्मिथ का अंदाज है. लेकिन आपको अनसेटल करना है, अगर आप कर पाओगे बहुत अच्छा, लेकिन ये अनसेटल करना आसान नहीं है. खासकर एक तरफ से अश्विन खेलते हैं, वो डिफरेंट तरह की बॉल करते हैं, और जडेजा एक लाइन पर करते जाते हैं. और जडेजा और अश्विन 2 बिल्कुल डिफरेंट तरह के स्पिनर्स हैं, जिनको नेगोशिएट करने के लिए आपकी टेक्निक और आपकी टैक्टिक्स दोनों डिफरेंट होनी पड़ेगी. सीएस, विराट नहीं रहेंगे पहले 2 टेस्ट मैच में, तो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो रजत पाटीदार है. आरसीबी से उनको फास्ट ट्रैक किया गया है. सॉलिड प्लेयर जी. और लेकिन कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि भाई, जब पुजारा अभी भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी, रहाणे खेल रहे हैं या वापस आना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अब वो समय जा चुका है?
देखिए, पहली बात, अगर उनको लाएंगे तो सिलेक्टर्स बताएंगे हम मूर्ख, तो आप हमें कहते हैं ये बंच ऑफ जोकर, तो हम महामूर्ख हैं। ठीक है, आपको देखिए ये डिसाइड तो करना पड़ेगा। जब एक बार सिलेक्टर्स ने सेलेक्ट कर डिसाइड कर लिया कि अब हम उन पर नहीं जा रहे, तो आप महामूर्ख नहीं बनोगे। तो मैं अगर कहूं भी उनको लाना चाहिए, जो मैं अगर आप मुझसे पूछे तो अभी उनके जाने का वक्त नहीं था। उनको खिला सकते थे 1-2 साल, बट द पॉइंट इज व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीजन, Stick. स्टिक विद दैट। Yes. अब रही बात पाटीदार की, पाटीदार को मैंने बहुत लिमिटेड देखा, लेकिन बहुत सॉलिड प्लेयर है वो, बहुत सॉलिड बैट्समैन है। मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत से अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है। और पाटीदार की एक खासियत ये भी है कि वो, जो कहते हैं ना कि एक अच्छा खेल भी सकते हैं और तो स्ट्राइक भी करते हैं। उनका तरीका ये है कि वो बीच में रोक रोक के, कहते हैं ना, कुछ अच्छी बॉल रोक कर और बाकी के ठोक करके, वो जो एक पुराना फिनोमिना था कि इज्जत भी दो प्लेयर को, बॉलर को, लेकिन बीच बीच में उसकी औकात भी दिखाते रहो। तो ये एक अच्छे प्लेयर है, एंड आई जस्ट होप दैट ही डज वेल, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है। उनको बहुत लेट, बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जिनको 30s के बाद चांस मिलता है। तो उनको जो चांस मिला है, आई होप ही कैपिटलाइज ऑन दैट। अगर नहीं अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा उनकी उम्र को भी देख करके, और इसके बाद कम बैक करना आसान नहीं होगा। बट ही इज अ वेरी वेरी सॉलिड बैट्समैन। And there is also news coming in that Mohammad Shami might be unavailable for this entire series because of injury. So that is again a jhatka, and India needs to figure out. But like you're constantly saying that there is Siraj, then you have Prasidh Krishna as well as great बुमराह, Bumrah. अवेश खान, ये सब लोगों को रखा है। यू हैव टू ट्राई देम। Yeah. आपको देखो, शमी, शमी का टाइम बहुत ज्यादा, देखिए पेस बॉलर है, 1 से 2 साल, 1 से 2 सीजन वो खेलेंगे, 2 से 3 सीजन अगर बुमराह इंजर्ड नहीं हुए वो खेलेंगे, और सिराज के पास अभी टाइम है। तो आपको सिराज के आसपास टीम को बनाना पड़ेगा, और इनको यही मान कर के चलना पड़ेगा कि बीच में कोई इंजर्ड होगा, कोई अवेलेबल होगा, कोई नहीं होगा। तो जब आपको ये होम सीरीज खासकर मिली है, जहां आपके स्पिनर्स बहुत अच्छा करने वाले हैं, सो दिस इज ए गुड चांस कि आप अपने बाकी के सभी बॉलर्स को देखिए, जिनको आप 20 स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग टीम्स के अगेंस्ट देख रहे हैं अच्छा करते हैं, उनको यहाँ पर देखिए। और इन विकेट्स पे उनका रियल टेस्ट होगा। ये बैट्समैन भी अच्छे हैं, ये टीम भी अच्छी है, इनकी अप्रोच भी बहुत पॉजिटिव होती है। तो बास्बॉल खेलने और ना खेलने की अलग चीज है, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच को आपको दिखाता है। तो आई थिंक इट्स ए गुड चांस फॉर देम। और आई डोंट थिंक इससे झटका की शमी नहीं होंगे। आई थिंक इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट ऑफ द टीम, रेस्ट ऑफ द पेस बॉलर्स एटलीस्ट, टू कम एंड कंट्रीब्यूट। आपको जान के खुशी होगी कि आपके जमाई बाबू केएल राहुल को विकेट कीपिंग ड्यूटीज नहीं दी जा रही हैं, और बट टॉस अप गुड फॉर हिम, गुड। गुड फॉर हिम, ही हैज बीन बैटिंग सो वेल। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका देखे, हम सीरीज ठीक है, वन वन ऑन ही हुआ, लेकिन हमारा जो पहला टेस्ट, चाहे हारे हो चाहे जीते हो, दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। गुड फॉर हिम कि अगर वो अपने आप को एज ए बैट्समैन स्थापित कर सके, यू नो by keeping against, keeping for almost 90 overs, 100 overs, and then coming out and bat is always been a tough task, and especially when you are not a regular wicket keeper. उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। इससे पहले इनके जो कोच है, जो सुपर कोच है हमारे राहुल द्रविड़, इनको जब पार्ट टाइम बनाया था तो वो इनका करियर बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि चाहे वो जमाई समझ के कहो या एक्स्ट्रा टैलेंटेड कहो, लेकिन इनको बचाने के लिए किया था। बट नाउ व्हेन ही सेटल, आई विश देयर शुड बी ए रेगुलर विकेट कीपर, और इनको अच्छे रन करने चाहिए पूरी एनर्जी के साथ, एंड ही इज अ वेरी गुड फील्डर अदरवाइज। Right. There is a question which has come in, CS, and the question basically is that will the pitch take spin from day one? If not, then Mark Wood as the lone pacer does not seem sensible, as if the pitch Yes. does not take spin on the first day, it can add unnecessary load on the speedster with rookie spinners. हैदराबाद जितने भी हमने मैचेस देखे, आपको मॉर्निंग में थोड़ी हेल्प मिलती है, और आप रैंक टर्नर मैंने कभी भी हैदराबाद में नहीं देखा। मैंने वो चेन्नई में भी देखा, मैंने कई पिचेस पे देखा, कोटला, इधर उधर, लेकिन हैदराबाद की पिचेस हमेशा से थोड़ी डोसाइल टाइप की होती है, और आपको बाद में स्पिन करवाती है। सो आई थिंक प्लेइंग वन पेसर, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, वो हैदराबाद सोच करके ही कहा था, कुड बैकफायर। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स, कल कैसी विकेट होगी, सामने कैसी होगी, क्योंकि हमारे पास भी बड़े धुरंधर विकेट बनाने वाले लोग हैं, जो विकेट को ऊपर नीचे पूरा बहुत कुछ करके दिखा भी सकते हैं।
Where the wicket-keeping role for India is concerned, whom do you think most probably will get the job, KS Bharat or Dhruv Jorel? Well, I haven't seen Jurel, so I have no comments to offer for him unless and until I see him. But for me, I think your number one wicketkeeper in India right now is Bharat. एंड नंबर टू फॉर दैट मैटर वाज संजू सैमसंग, जो मुझे कभी अब तो बेचारे खेलते हुए भी नहीं लगते और उनको T20 वाला बादशाह बना के रख दिया है. बट एनीवे, आई थिंक भारत शुड बी प्लेइंग as number one wicket keeper, and if Joral is better than him, then please, I have nothing to offer because I haven't seen him. What about Jimmy Anderson? Now, the way things are, it seems that he might have a very limited role to play, but he is 10 wickets short of 700 test wickets, and he still keeps saying at age 40 that I still have a lot to offer, and don't compare me to Stuart Broad. आज कपिल देव उनको लास्ट में थर्ड मैन घुमाते थे अजरुद्दीन, क्योंकि उनको 432 करने थे ना, ये तो 700 करने वाले हैं. आई थिंक यू हैव टू नो, लास्ट एशेज सीरीज देख ले, उसके बाद भी जितना भी एंडरसन को देखा, ही इज नॉट द सेम एंडरसन एज ही यूज्ड टू बी. वेल अगेन, नई बॉल से अभी भी थोड़ा सा करते हैं, बॉल को सीम पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, बॉल को बहुत अच्छा अंदर बाहर निकालते हैं, लेकिन पॉइंट इज एज हैज कॉट अप विद हिम. And if he's not their number one pace bowler, if Wood is the one pace bowler who is playing, then obviously it's end of the road for Anderson. Or Indian pitches play, I don't see him playing much. We'll end on some stats, and also the most interesting part is, which you partly indicated, that the last time India lost at home was in 2012, thanks to the lethal combination of Graham Swan and Monty Panessa. After that, it hasn't happened. And in the last 3 test series between India versus England, in 2018, England beat India 4-1 in England. Then in 2022-21, India beat England 3-1 in the 4 test series in India. And then in 2021-22, the 5 test series ended in a draw. So see us this time with a 5 test series, and with due respect being given to India and the way this entire calendar has been added up, because earlier, except for the Ashes, I don't think any other team had a crack at a 5 test series. It would most probably peter out at 4 or 3. So how do you think this will go, and how would India be tested in home conditions? It's one of the rare series जो आपको more than 3 टेस्ट मिल रहे हैं, आपको एक full series मिल रही है. So this also says a lot about the future of test series as a whole. क्योंकि वी हैव बीन क्राइंग कि हम साउथ अफ्रीका गए, 2 मैच मिले, वहाँ गए, कम मिलते हैं. अब तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा हमें ज़्यादा टेस्ट नहीं कहीं भी मिलते हैं, और वो बिकॉज ऑफ द आई बॉल्स, बिकॉज ऑफ द टीवी कंपनीज. जितना ये लोग जितना पैसा कमा सकते हैं, जितना उनको अट्रैक्शन मिलता है, आई थिंक उसी पे अब डिसाइड होता है. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सीरीज. अगर ये लास्ट सीरीज की तरह रही, अच्छे से वो ड्रॉ कर गए और अच्छा फाइट रही, आई थिंक दैट वुड से लॉट अबाउट टेस्ट क्रिकेट के उसको जिंदा रखने के लिए. लेकिन अगर वन साइडेड चलेगी और वो अच्छा फाइट नहीं कर पाए, तो बिलीव मी, ये इंग्लैंड को लास्ट बड़ी सीरीज मिल रही है. इसके बाद इंडिया में तो नहीं मिलेगी, हमें वहां पर मिलेगी या नहीं, ये अलग चीज है. तो इसलिए उनको फाइट करके दिखानी भी होगी. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक स्ट्रेटेजाइजिंग up against India is very, very important. Playing with 1 spinner, 2 spinner, 3 spinners, or one pace bowler, I think that एक मैच के बाद, पहले में तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन एक मैच के बाद ये सब कुछ रिवाइज होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर जो भी बैट्समैन की परफॉर्मेंसेस भी और बॉलर्स के हिसाब से भी. And last but not the least, before we finally sign out, would you still like to see Rohit Sharma open the innings? Yes, definitely. I don't see him batting any other, at any other order, because he is your number one player. Technically, also he's good. Whether or not he's, scoring big runs, but I think I see him playing only at the top, taking the strike like Virender Sehwag. For me, he's kind of Virender Sehwag who can chase the entire spectre of the game in early hour, 1 hour or 2 hours. Absolutely. So that's a wrap, and we'll be back with lots more as the series keeps on unfolding. Please do remember that India and England, 2 of the best teams in the world, will take on each other in a 5 test series in India. Home conditions, yes, but it's never going to be easy against the Brits, and as it is, they are all riled up to prove themselves. So we'll be back with some incisive analysis with CS, and do keep a watch out for us, and we would hopefully not
disappoint you. Thanks for watching. Goodbye. Thank you.